आज की मीटिंग में हम सीखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है और उसकी किसी भी सॉफ्टवेयर में जो एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस है उसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज बहुत दिनों से ये इंक्वायरी आ रही थी कि एक्सेस में तो चलो हम वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सारी जो डाटा वो एसक्यूएल में चल जाती है, ओके है, बट कई बार एसक्यूएल सर्वर भी लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम कैसे उसको सेटिंग करेंगे, कैसे उसको लेकर जाएंगे, तो ये आज हम इस मीटिंग में सीखेंगे। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर एसक्यूएल सर्वर विद आवर सॉफ्टवेयर्स। आवर सॉफ्टवेयर्स सपोर्ट लाइक SpeedPlus9, iGenius, Red Apple. These software support SQL Server database as well as Access software database. So everybody knows how to configure SQL Access, but today we will see how to configure SQL Server database so that you are very much familiar with the SQL Server and you don't hesitate in implementing SQL Server at any customer. Okay, so let me share my screen with you. Today I will try to explain both in Hindi as well as in English so that everything is clear to everybody. Okay. तो जब हम एसक्यूएल सर्वर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा एसक्यूएल सर्वर पार्टी के पास इंस्टॉल करना है और कौन सा उसका वर्जन होना चाहिए, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या उसकी सेटिंग करनी है। तो let us see from where to download SQL Server and which SQL Server version you will need to implement at party PC. Okay, so first of all we will Google for this. We will write Microsoft SQL Server 2014 download Express version. Okay, so Express version is totally free of cost, so there is no need to worry that you are using any pirated software or not. So as Express version is totally free of cost from Microsoft. ओके, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपने जो डाउनलोड करना है, आपने 2 फाइलें डाउनलोड करनी है। इसमें जब आप डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। तो यहाँ से आपने डाउनलोड करना है एक तो एक्सप्रेस 64 बिट, बिकॉज 32 बिट तो आजकल किसी पीसी में नहीं चलता, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यू नीड टू डाउनलोड एक्सप्रेस 64 बिट as well as Management Studio 64 bit. These 2 files you need to download at customer end. Okay, after downloading you need to install these files and SQL Server 2014 is installed very well. So only 2014 Screen is not displaying, sir. Please share screen. Only SQL Server 2014 you need to install. Okay sir, everybody clear? So after installation, I will not go towards installation because it will take approximate 10 to 15 minutes. So after installation you will get this SQL Server 2014 Management Studio on your PC. Okay, if anybody is facing any problem in installation, you can Google how to set up SQL Server on my PC. There are a lot of videos available on this same topic, so I will not go how to install. Okay, after installation you will get this Microsoft SQL Server 2014 on your PC. Okay. Hello. Yes, please, sir. Yeah, Manoj, we're not able to see the screen only. You just disconnect and reconnect. Okay. Everybody seeing the screen, no problem?
Yes, sir. Nataraj, you can reconnect the Yes, sir. meeting. No, yes, sir. Okay, okay, thank you. Yes, sir. So after downloading, this software is on your PC, so that's fine. Now what we need to do when we create a new company, like let me create a company, demo company. Okay, and address and everything. Now ये कंपनी बनाने के टाइम पे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलती है MS एक्सेस डेटाबेस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर SQL सर्वर का लिंक नहीं आ रहा, तो स्क्रीन इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर सेटिंग में जाना है. वी नीड टू क्लिक ऑन सेटिंग एंड this is my server and this is my server name. I just copy this name from SQL server and paste this name in my SQL server name. I just enable SQL server and click on SQL server name and paste this. So this is my server name. I need to paste it here, and in authentication I need to click Windows authentication only and then save. So today we will discuss about all the things that are required in SQL Server installation, whether on single PC or on multiple PCs, and how to configure a server as well as a client PC. So today, now I am discussing how to configure on single PC. ओके, अभी हम देख रहे हैं कि सिंगल पीसी पे एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है. सर प्लीज माइक ऑफ. तो यहाँ से हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को टिक कर लेंगे. आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सेटिंग में ये डाला, ओके किया, सेव किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ऑन हो गया. ओके, आफ्टर सेटिंग this SQL server database option is enabled. So let me create a new company. I click on create company. When I click on create company and enter my credentials, okay, my company is ready. मनोज जी बार बार ना स्क्रीन जा रही है, इसकी वजह से आधा आधा शो हो रहा है, पता ही नहीं चलता. सर रिकनेक्ट कर लीजिए, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम होगी, सभी के पास चल रही है. So you can see my company is created. Now if I click on this demo company, I can see this is my company path. So let me go to this path and this is my database of SQL server. If I log into SQL server and connect, I can see the same database. This is my database already joined into the SQL server. Okay, I can see this same database on SQL server. So up to single PC installation, this topic is complete. There is no need to worry. यहाँ तक अगर आप सिंगल पीसी की इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब क्लाइंट के पास एक ही पीसी है, उसमें उसने अपनी एसक्यूएल सर्वर पे कंपनी चलानी है, तो आपको इसमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है. सिंपल यहाँ पर आप ये वाली कंपनी ओपन करेंगे, ठीक है जी, और यहाँ पर आप अपने अकाउंट्स बनाएं, अपनी आइटम्स बनाएं, अपने सेल परचेज के बिल बनाएं, कुछ भी आप करते रहें, सब कुछ चलता रहेगा इजीली. तो यहाँ तक आपका सिंगल पीसी वाला ट्रेनिंग कंप्लीट है. अब सेकंड सीन क्या आता है कि हमें इसको मल्टीपल पीसी में चलाना है. मतलब एक ही दुकान में
2 पीसी लगे हैं, 4 पीसी लगे हैं, 5 पीसी लगे हैं, एक बंदा स्टॉक देख रहा है, एक बंदा अकाउंट्स कर रहा है, एक बंदा बिलिंग कर रहा है, एक बंदा मैनेजमेंट कर रहा है। तो ऐसे करके इस सिनेरियो में अगर हमने एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो उसका हम कैसे सेटिंग करेंगे? मींस इफ वी आर यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, डेमो कंपनी में लिख दूं यहाँ पर, या ओनर का नाम लिख दूं, लेट अस राइट इट एज मुकेश अंबानी। ओके, दिस इज लॉगिन नेम एंड its authentication is SQL Server authentication. You need to click here and यहाँ पर कोई पासवर्ड दे देते हैं। मैं यहाँ पर एक पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक इट शुड कंटेन alphabets, numerics and special characters also. So I have entered a unique password. Okay. उसके बाद आपने यहाँ पर एनफोर्स पासवर्ड पॉलिसी, ये सभी को ऑफ कर देना है, बिकॉज अगर आप यहाँ से ऑफ नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, एनफोर्स पासवर्ड एक्सपायरेशन, मतलब कुछ लोगों का कॉल आता है कई बार कि सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, तो देखते हैं कि उसका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है। तो इन टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस इन फ्यूचर वी नीड टू just disable all these options and let me choose a default database for this user. Let us see, my database was data2, so I select data2 and click OK. So now my login is created. For more details, let me double click on this login and go to सर्वर रोल्स। यहाँ पर आपने सर्वर रोल्स में जाना है और सारे जितने भी सर्वर रोल्स हैं इन सबको टिक कर देना है। सो वी शुड टिक ऑल दिस सर्वर रोल्स एंड अगेन गो टू दिस यूजर नेम एंड क्लिक ऑन यूजर मैपिंग। नाउ आई सिलेक्ट ए डेटाबेस। यहाँ पर आपने अपनी डेटाबेस सिलेक्ट करनी है, जो भी डेटाबेस आप उस यूज़र को राइट्स असाइन करना चाहते हैं वो डेटाबेस आपने यहाँ से टिक कर लेनी है। एंड इसके बाद यहाँ से आपने ये सारे जो रोल्स हैं, डेटाबेस के रोल्स हैं, उन सबको एनेबल कर देना है। तो ये बेसिकली यूज़र से रिलेटेड 3 काम है। पहला हमने यूज़र क्रिएट किया, उसका पासवर्ड बनाया। सेकेंडली हमने ये सर्वर का रोल्स उसको असाइन किए और थर्ड हमने यहाँ पर उसकी यूजर की मैपिंग कर दी इस डेटाबेस के साथ। ओके, सो ये 3 काम यूजर के दिए हैं। चौथा काम जो है वो है कि इस सर्वर का हमने सेटअप करना है। सो द फोर्थ कंसेप्ट इज सर्वर सेटअप। वी नीड टू क्लिक ऑन द सर्वर नेम। यू कैन सी द सर्वर नेम ऑन द टॉप। यहाँ पर आपका सर्वर नेम है, जैसा आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप। इफ यू कैन फॉलो माय कर्सर, राइट क्लिक ऑन सर्वर नेम एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। सर्वर नेम में आपने क्या क्या सेटिंग्स करनी है, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेमोरी में जाना है। मेमोरी में आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1024 लिखा मिलेगा। इट विल बी बाय डिफॉल्ट। यू नीड टू चेंज दिस इनटू 1 lakh. Okay, it will improve the server speed dynamically. Very good server speed it will be. So you need to configure here minimum memory, and secondly you need to configure boost SQL Server priority. This is also checked because I have configured it already. So boost SQL Server priority. Third thing, you need to make sure SQL Server and window authentication mode is enabled. Okay, this mode should be enabled. And the fourth thing, you need to make sure in connections, allow remote connection to this server is enabled. तो यहाँ पर जो चौथी चीज आपने चेक करनी है वो है allow remote connection to this server, आपका टिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप
आपने देखा कि कैसे इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। ये आपका एसक्यूएल सर्वर मेन पीसी का कॉन्फ़िगर हो गया। इसमें 2-3 छोटी-छोटी सेटिंग्स और हैं, मैं आपको अभी सिखा देता हूँ कैसे है। ये एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगर करने के बाद हम यहाँ पर जो मैनेजमेंट स्टूडियो है उसको बंद कर देते हैं। Let us close the management studio and I will enter here SQL Server 2014 configuration manager। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने तब करनी है जब आप मेन पीसी से अपना जो इसका जो सॉफ्टवेयर है इसको आप लैन पे चलाना चाहते हैं। मीन्स if you have multiple PCs connected, then this settings need to do on the main PC. Okay. So in SQL Server Configuration Manager, we will come to SQL Server Network Configuration, then click on Protocols, and the protocol is TCP/IP. In TCP/IP, this will be disabled by default. By default यहाँ पर no होगा, आपको इसको yes करना है, enable करना है। ओके और यहाँ पर IP एड्रेस में जाके जितने भी TCP पोर्ट हैं इनमें 00 लिखा मिलेगा। इसको आपने 1433 ऐसे करके TCP पोर्ट का नाम दे देना है। इसमें नाम दे दिया, इसमें नाम दे दिया। You need to configure all the TCP ports as 1433. Okay, so if all the TCP ports are configured on 1433, then your server is configured. Okay, third thing, we need to configure our firewall. Now I go to firewall. When I click on search and click on firewall, then click on Windows Firewall. In firewall there are inbound rules. I click on inbound rules and click on new rule. Then click on port. ओके यहाँ पर आपने इनबाउंड रूल में जाना है, न्यू रूल पे क्लिक करना है, उसके बाद पोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम जो हमने अभी पोर्ट बनाया था 1433 उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि उसको कोई फायरवॉल टच ना करे, वो कहीं से लीक ना हो। तो यहाँ पर हम 1433 अपना पोर्ट नंबर दे देंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे और इसका नाम दे देंगे एक कोई भी, जैसे मैंने SQL सर्वर फायरवॉल ऐसा नाम दे दिया। कोई भी नाम दे दो, आपका जो भी इच्छा है वो नाम देके हमने यहाँ पर इसको फिनिश कर दिया। तो ये हो गया हमारा फायरवॉल कॉन्फ़िगर हो गया सारा। तो ये वाली आपने सेटिंग करनी है मेन पीसी पे। और जो लास्ट सेटिंग है वो है यहाँ पर आपने जाना है सर्विसेज में। ये मैं सारा आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको SQL सर्वर की सेटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कोई भी कभी भी आपने लैन पे या उसको नेटवर्किंग पे चलाना है तो आपको कहीं कोई टेक्निकली कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है जी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, अभी मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूँ। यहाँ लिखना है सर्विसेज। ओके, सर्च में सर्विसेज लिखेंगे तो यहाँ पर सर्विसेज में आ जाएंगे। वी विल कम टू सर्विसेज। ओके, एंड here there are two services that need to be enabled. One is SQL Server Express. This services is showing as running. You need to right click and restart this services. Okay, अदरवाइज तो हमें पीसी रीस्टार्ट करना पड़ता, बट हमें अभी ज़रूरत नहीं है पीसी रीस्टार्ट करने की। बिकॉज अक्सर क्या होता है
एसक्यूएल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने पीसी रिमोट पे लिया होता है, तो बारी बारी अगर रीस्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और कस्टमर का भी टाइम वेस्ट होगा। तो सो टू अवॉइड अवर वेस्टेज ऑफ टाइम we can come directly to this service and restart this SQL Server service. Okay, hope it's clear. And the last but not the least, this is SQL Server browser. This will be disabled by default. We need to click here and enable it. To enable it, I will click on automatic and apply and OK. After enabling, I need to start this service. Okay. So अगर आपका ये SQL सर्वर ब्राउजर ऑन नहीं है तो दूसरे पीसी पे आप SQL सर्वर का नाम नहीं देख पाएंगे। ओके, तो ये आपका मेन पॉइंट है। ये सारा होप आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे और आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो आप उसको दोबारा से रेफरेंस कर सकते हैं। तो ये हमारी जो सेटिंग है अभी तक की, ये सारी सेटिंग आपने मेन पीसी पे करनी है। दिस ऑल सेटिंग शुड बी डन ऑन मेन पीसी। ओके, होप इट्स क्लियर। यस सर। So Yes, sir. after Yes, sir. doing all the service, all the settings on main PC, we will go to our client PC. तो client PC में आपने क्या करना है, client PC में आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और साथ में SQL सर्वर को भी इंस्टॉल करना है। और SQL सर्वर इंस्टॉल करके यहाँ पर आपने क्या करना है, SQL सर्वर में जाना है और यहाँ पर आपने कनेक्ट कर लिया। इंस्टॉलेशन तो आप कहीं से भी उसका वीडियो देख लेना, वैसे उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसे का वैसा सिंपल इंस्टॉलेशन है। ओके, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जब आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने ब्राउज फॉर मोर करना है और नेटवर्क सर्वर में जाना है। यहाँ पर आपको जो आपका सर्वर वाला नाम है, मतलब जो आपका मेन पीसी पे सर्वर था उसका नाम यहाँ पर आपको शो करेगा। मैं तो फिलहाल सेम पीसी में ही हूँ बट यहाँ पर नाम शो कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क सर माय सर्वर नेम, माय मेन पीसी नेम इज नॉट शोइंग। Someone from you may have experienced this scene also, that this name is not showing on the client PC. Network server name is not showing on the client PC. So in that case, there may be two reasons. One reason is network connectivity. If network connectivity is not proper, then this name will not show here. Otherwise, the last option that we do on main PC, that was in services. This is SQL Server browser. अगर आपका ये डिसेबल्ड है और यहाँ पर रनिंग में नहीं है तो ये आपका यहाँ पर नेटवर्क पीसी में ये वाला नाम शो नहीं होगा। ओके, सो आप ये नोट कर लें कि अगर ब्राउजर वहाँ पर मेन पीसी में नहीं चल रहा तो नेटवर्क पीसी में, क्लाइंट पीसी में ये नाम नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने नेटवर्क पीसी का नाम ले लेना है और इस नेम को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ओके, अभी नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, मेन पीसी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और मेन पीसी में आपके पास डायरेक्टली कंपनी का नाम कुछ नहीं शो करेगा, यहाँ बिल्कुल खाली शो करेगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने नाम दे दिया नेमो कंपनी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑन नेटवर्क। दिस इज फॉर योर क्लैरिटी ओनली। ओके,
So let me write demo company on network and यहाँ पर आपने कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ पर आपने सिंपली लिंक रिमोट पे क्लिक करना है। लिंक रिमोट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस मिले डालने के लिए। सबसे पहली ऑप्शन जो आपने यहाँ पर डालनी है वो है रिमोट आईपी। रिमोट आईपी में आपने सर्वर का नाम डाल देना है, जो भी आपका यहाँ पर सर्वर का नाम आपको मिला। जैसे मैंने ये एसक्यूएल सर्वर में क्लिक किया था, ये वाला नाम आपने रिमोट आईपी में डाल दिया। ओके, सो दिस नेम शुड बी रिटन इन रिमोट आईपी and database name was data2 and this is my username was I created. Let me write this username and my password was, this is my password. So these 4 things I need to enter here. So you can notice that these are all network related things. This database was created on main PC. This username was created on the main PC and this password was created on main PC and this is main PC server name. Okay, so let me click on create company. And let me open this software again. So you can see, because I am using on the same PC, so that's why these 2 companies are showing here. But on network, this PC will, this company will be on a client PC and this company will be on main PC. Okay, so let me open it and I enter my username and password. So you can see all the accounts, all the items that was created in the main PC are available. If I create something here, let me enter demo account. Okay, customer. And if I open the same on main PC, so if I open the same on main PC, let us see whether demo account is available or not. You can see demo account is available on the main PC. Means this database is connected on both companies. Same, actually the same database is there. हेलो Yes sir. सर, मैं कह रहा था क्या सबके लिए अलग अलग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? अगर क्लाइंट के पास अगर 4 पीसी हैं तो चारों पीसी के लिए अलग लाइसेंस देना पड़ेगा? Yes sir, yes sir. चारों ओके, PC और सेकंड वन थिंग्स की क्या एक्सेस डाटाबेस को हम जो है ऑन ड्राइव पे या गूगल की ड्राइव पे रख के उसको क्या शेयर नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करना सर, कभी नहीं करना सर, कभी नहीं करना। उससे क्या एरर आती है सर? उसमें क्या एरर आती है सर, जो एक्सेस की डेटाबेस है ओके, वो और जो गूगल ड्राइव है या वन ड्राइव है, हाँ जी, इनमें क्या होता है, गूगल ड्राइव बारी बारी डाटा सिंक करती है हमारे मतलब जो हमारा पीसी है वहां से डाटा ऊपर लेती है और वहां से डाटा नीचे भी डालती है कभी कभी, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, मान लो आपके पास सपोज आपने आज आपका डाटा सिंक हो गया, आज आपके पास 1000 रिकॉर्ड है और आपने उसमें कुछ रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी उस टाइम पे नहीं थी जिस टाइम पे आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे, बाद में नेटवर्क कनेक्टिविटी हुई
तो बाद में जो गूगल ड्राइव है वो ऊपर वाला जो डाटा है उसको नीचे आपकी ड्राइव में डाल देगी। मतलब आपके जो भी आपकी डेटाबेस है मेन वाली उसमें मैं पिछले 2 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसी फॉर्मेट को, एक्सेस को। मुझे एसक्यूएल की जानकारी नहीं थी और वो कंप्लीटली चल भी रहा है, कोई एरर नहीं है अभी तक मुझे आया हुआ है और 2 साल से रन कर रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आए हैं जिनका डेटा मतलब वो क्या कहते हैं कि हमने तो सर अभी तो एंट्री करी थी, एंट्री कहाँ चली गई? नो सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है। ओके सर। इसलिए हम सभी को कहते हैं कि आप ये काम मत करो, अगर आपने करना है तो आप उसका जो बैकअप का पाथ है वो गूगल ड्राइव का है। ओके, जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वहां पर बैकअप पाथ आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सर, यहाँ पर ना एनेबल ऑटो बैकअप है, यहाँ पर एनेबल ऑटो बैकअप में यहाँ पर आपको बैकअप वाली ड्राइव का पाथ दे दीजिए। तो जब भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो वहां पर बैकअप हो जाएगा आपका। बिल्कुल, तो आपको जरूरत ही नहीं है, अगर ज्यादा से ज्यादा डाटा आपका खत्म भी होगा तो 1 दिन का डाटा खत्म होगा तो क्या बड़ी बात है जी, समझे मेरी बात। बट अगर डायरेक्टली करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता सर कौन सी एंट्री चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, तो वो बहुत रिस्की जॉब है। ओके सर, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू ओके सर। सर बहुत बार है ना क्लाइंट मशीन में कनेक्शन एरर का बहुत इशू आता है जी, और नेटवर्क भी देखा है तो नेटवर्क प्रॉपरली वर्क होता है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं क्लाइंट पीसी में तो कनेक्शन एरर का बहुत बार प्रॉब्लम होता है। एक बार स्टार्ट हो जाता है, फिर बाद में जब एंट्री करते हैं तो कनेक्शन एरर आ जाता है। सर कनेक्शन एरर ज्यादा हमें देखने को मिलता है जहां पर हमारी वाईफाई कनेक्टिविटी है। जहां पर केबल नेटवर्क कनेक्टिविटी है वहां पर बहुत कम कनेक्शन एरर देखने को मिलता है। तो इसलिए आप ज्यादा जो कस्टमर्स हैं उनको बोलिए कि केबल नेटवर्किंग करवाएं। वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट होता ही नहीं जल्दी, केबल नेटवर्क से ही किया है हमने, फिर भी वो इश्यू आता है। ओके सर, वो तो फिर जो आपका नेटवर्क वाला बंदा है उनको थोड़ा दिखाना पड़ेगा। लेकिन सर बाकी दूसरा एप्लीकेशन नेटवर्क में वर्क होता है सर। ओके, वो आप चेक करवा देना सर, नो प्रॉब्लम, ऑन द स्पॉट चेक कर लेंगे कभी कोई ऐसा इशू हुआ तो। ठीक है सर, ठीक है। हेलो सर, हाँ जी, एक चीज थी, हेलो, प्लस 8 वर्जन में कैसे मल्टी यूजर लाइसेंस अलग रहता था और सिंगल यूजर अलग रहता था। अभी समझो कि कस्टमर को हम मल्टी यूजर बताते ना तो उनको ऐसे नहीं बता सकते कि 2 मशीन पे ही चलेगा, 4 मशीन पे ही चलेगा। अभी कुछ जगह पे जो ग्रोसरी वाले शॉप्स रहते हैं या कुछ बड़े बड़े मॉल रहते हैं वहां पे 5-5, 6-6 मशीन रहते हैं सर। तो हर मशीन में लाइसेंस डालना यानी ये थोड़ा हेक्टिक लगता है सर। लाइसेंस का कॉस्ट कितना कम है? क्या हुआ सर? लाइसेंस का कॉस्ट सर वही ले रहे हैं ना सर? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जो 8 वर्जन था ना उसमें एक सिंगल यूजर का अलग लाइसेंस नंबर रहता था और मल्टी यूजर का अलग रहता था। वो लाइसेंस कर देंगे इसमें सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं बात बता, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। अभी लास्ट जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, जो इंटरेस्टेड है कि आपने जो एसक्यूएल का बैकअप लेके उसको एक्सेस में कैसे रिस्टोर करना है और एक्सेस को एसक्यूएल में और एसक्यूएल को एक्सेस में कैसे ट्रांसफर करना है, उस पर 2 मिनट आप देखेंगे तो मे बी आपको काफी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती हैं जब हम किसी क्लाइंट एंड पे होते हैं कि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर वो जो एसक्यूएल की अटैचमेंट डिटैचमेंट काफी टेक्निकल पॉइंट होते हैं, तो वो सिंपली हमने सॉफ्टवेयर में किया हुआ, उसको कैसे करना है आप 1 मिनट में देखेंगे यहाँ पे। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी डेटाबेस का यहाँ पे बैकअप लेंगे। मींस हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस है या एक्सेस डेटाबेस है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक गौर करने वाली है, व्हाट इज द हाउ वी गेट द डिफरेंस, इट्स एक्सेस डेटाबेस और एसक्यूएल डेटाबेस। If you see space in data and
in number 1, 2, 3, 4. Like here you can see difference means space, data space 1 to 9. It means it's access database. अगर space है तो ये MS access database है. यहाँ पे हम SQL को देखेंगे तो यहाँ पे data 2, no space between data and Merrick's number. It means SQL data. So यहाँ पे हमें SQL को बैकअप करना है या एक्सेस को बैकअप करना है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लिक ऑन द कंपनी एंड देन वेयर वी टेक द बैकअप, सेट पाथ. कहाँ पे हमें बैकअप लेना है वहां पे पाथ सेट कर देंगे. एंड आफ्टर सेटिंग द पाथ जस्ट क्लिक ऑन रिस्टोर बैकअप डेटाबेस. Just click on OK and simple steps because in long journey we see many times this process is very complicated. In last year we also confusing in this type of work. Always we search on Google some small softwares how they can restore and transfer this type of function, but now we can implement these step in Speed Plus. तो Speed Plus में हमने ये सब कुछ implement कर दिया. यहाँ पे just जो भी आपने बैकअप लिया है यहाँ पे उसको आपने रिस्टोर करना है. तो पाथ यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कहाँ से हमें वो हमने स्टोर किया था, where we store the data just. एंड हेयर वन विंडो विल बी ओपन. एक विंडो यहाँ पे ओपन होगी, एक फॉर्म ओपन होगी. जस्ट यहाँ पे 2 ऑप्शंस है. हेयर वी सी द 2 ऑप्शन, कंटिन्यू टू रिस्टोर MS Access एंड माइग्रेट टू SQL सर्वर. दिस इज सिंपल स्टेप टू कन्वर्ट एक्सेस टू SQL एंड SQL टू Access. These are very useful for everyone because everyone confusing when they configure first time SQL and some error and some problems then they got they will totally confuse how handle with this database and they are perfect in MS Access. MS Access को हर कोई जानता है, इधर से रिपेयर कर लिया उधर से कर लिया, बट SQL में ये प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे हमने इसको सिंपल कर दिया. तो ये एक टेक्निकल पॉइंट था जो आपके साथ डिस्कस करना था. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसने रिस्टोर कर दिया SQL में. बट अटैचमेंट डिटैचमेंट एवरीथिंग डन बाय द सॉफ्टवेयर. एवरीथिंग इन स्पीड प्लस वी विल इंटीग्रेट हाउ वी कैन कन्वर्ट MS Access to SQL and SQL to MS Access. So today's we learn lot of things regarding SQL. हेलो सर. जी बोलिए बोलिए. सर मैं पूछना चाह रहा था MS Access डाटा में और ये MS SQL डाटा में अच्छा कौन सा रहता है, क्या डिफरेंस है दोनों का? सर अगर तो सिंगल पीसी है, वर्कलोड कम है. इफ पार्टी हैव स्मॉल वर्क मींस नॉट अ लार्ज ट्रांजैक्शन देन वी यूज ऑलवेज MS Access. सिंपल, पोर्टेबल, ट्रांसपेरेंट, everything is simple up to 1 GB. If data will be large or LAN based, अगर आपका LAN based कंपनी है, बहुत बड़ा database है, तो SQL ही रिकमेंड किया जाता है. और SQL में जो स्पीड है वो डेफिनेटली ज्यादा होती है नेटवर्क पे एज कंपैरिजन टू MS Access. So on LAN version always prefer to MS SQL as comparison to Access database. थैंक यू सर. And here we see one shortcut key. Just to press F9 and database automatically move to SQL to MS Access. And here we see one more company and that just wait. Shortcut key is F9. Directly we can convert any database to MS Access, SQL to MS Access.
very simple steps we done in Speed Plus 9. Everything may be clear in this meeting, and here you can see just press F9 on the demo company. It will automatically convert into MS Access. If you software implement in any abroad country like Dubai, Kenya, Ghana, Nigeria, Malaysia, Singapore, everywhere we can implement this software because our software is Unicode. They will prefer always SQL Server. In European, in every country, they will prefer always SQL Server. So SQL Server knowledge will help you gain more client and more knowledge, technical, and you will also learn lot of things from YouTube also. बहुत सारी चीजें आपको YouTube पे भी मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें हमने मिस कर दी होंगी। हमारी तरफ से बहुत सारी कोशिश रही है कि हम आपको अच्छे तरीके से ट्रेन करें, गाइड करें, बट कुछ भी मिस हो गया होगा तो आप उसको, अगर कोई टेक्निकल आपको इंस्टॉलेशन में कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप YouTube से हेल्प ले सकते हैं, चैट GPT से हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी को क्लियर हो गया मेरे हिसाब से? यस सर। क्वेश्चन था। एवरीथिंग क्लियर इन दिस मीटिंग? टुडे हो गया सर, क्लियर हो गया। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश? ओके हेलो सर, और एक सेशन सर रखेंगे इसके ऊपर से। हेलो, या excuse me sir, I am Shaji from Kerala. या Shaji, how are you? Sir, fine. I want to know, in LAN this MS Access will work? Yes, definitely you will also install MS Access online, no problem. Access also will work in LAN. Okay. Yeah, just share the drive, simple. हेलो। या बोलिए बोलिए सही साहब, बोलिए प्लीज। सर ये क्या होता है, कई एजेंसी में उनका भी SQL सर्वर डाल दिया रहता है ना सर, वो इंस्टेंट सेम हो जाता है ना, क्या करना है सर उसे? मतलब सेम नाम पे रहता है SQL सर्वर बोल के। नहीं, सेफ नोड का तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारा जो सॉफ्टवेयर है नहीं वो नेम सेम रहता है ना सर, वो भी SQL डाल के रहते हैं। उनका एजेंसी का कुछ 4-5 एजेंसी रहता है, वो भी SQL डाल के रहता है। इससे कन्फ्लिक्ट होता है क्या सर ये इससे देने से? नहीं, ऐसे कन्फ्लिक्ट नहीं होता सर, क्योंकि नेटवर्क में जो नाम आएगा ना आपका, वो यूनिक नाम ही उठाएगा। ओके। में जब आप, जैसे मैंने आपको दिखाया SQL सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो तब वहां पे एक नाम होगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा नाम आएंगे वहां पे, क्योंकि हमारा जो सर्वर है उसका तो नाम सिंगल है ना। सर उसमें IT स्ट्रिंग से भी हो सकता है ना SQL सर्वर? वहाँ पर ना इससे लॉगिन सर्वर का नाम आता है, जैसे मैंने आपको दिखाया डेस्कटॉप आ गया। जी जी सर। हाँ सर वो भी। हेलो जी जी बोलिए बोलिए प्लीज। सर वो भी ऐसे लॉगिन यूज करके रहता है ना सर, पासवर्ड? सर ये देखिए, ये जो है ना, ये पीसी का नाम है। जी सर। हाँ। और जो दूसरा पीसी होगा उसका डेफिनेटली नाम अलग होगा। ये वाला नाम सेम हो सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब कंप्लीट स्ट्रिंग हम उठाएंगे तो पीसी का नाम जो सर्वर मेन वाला है उसका यहाँ पर नाम डेफिनेटली आपके पास आएगा ही आएगा। ओके ओके सर, ठीक है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज, अदरवाइज तो SQL सर्वर ही कंफ्यूज हो जाएगा कि नाम कहाँ से डेटा है। ओके सर। सर जब शेयरिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ डाटा फोल्डर को शेयर करना चाहिए या पूरा जो सॉफ्टवेयर का फोल्डर है उसको शेयर करना चाहिए? सर एक्सेस की बात कर रहे हैं या SQL की? दोनों में सर। एक्सेस में तो सर ड्राइव शेयर होती है ना, पूरी ड्राइव शेयर करनी पड़ेगी। पूरी ड्राइव शेयर होती है। एक्सेस इन MS एक्सेस वी कैन इन LAN नेटवर्क जस्ट शेयर द ड्राइव, and in SQL just we configure the server, then we connect through the LAN. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे SQL सर्वर का डेटा डिलीट कैसे करते हैं? जैसे नॉर्मल एक्सेस का डेटा तो फोल्डर जाकर डिलीट मार देते हैं, एक्सेस का डेटा डिलीट कैसे होता है? सॉरी SQL का।
सर मेरा और एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। सर सर्वर पे डी में सर्वर पे इंस्टॉल है हमारा लोकल सॉफ्टवेयर डी में, और क्लाइंट में डी फोल्डर नहीं है, वहां पे ई है समझो, नहीं तो फिर सी है। डेटाबेस के लिए तो ठीक है कि एसक्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया सर्वर से, लेकिन रिपोर्टिंग में सर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या? नो। रिपोर्टिंग में जैसे हम क्रिस्टल में डेटाबेस को अटैच करते कंपनी 12 को, तो सर्वर पे तो डी रहेगा और दूसरे क्लाइंट मशीन में सी रहेगा, तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं क्या ऐसा? सर जब आप उसमें करते हैं ना, कॉन्फ़िगर करते हैं, डेटाबेस का नाम अपनी कंपनी 12 ही रहना है, पूरा पाथ मत दीजिए। जब आप सर वेरीफाई डेटाबेस करेंगे तो वहां पे आप ब्राउज करके जब पाथ उठाते हैं ना, तो पूरा जो पाथ है उसको वहां पहले एक बार उसको अटैच कर दें, फिर दोबारा से जब उसको वेरीफाई करें ना, उससे पाथ उसको रिमूव कर दें, जस्ट कंपनी 12 रख लें वहां पे। अच्छा, तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है वहां पे। ठीक है, एक बार करके देखूंगा। जी 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 ठीक है, थैंक यू सर। चलो जी जी सर जी, और एक सेशन सर रखेंगे बीच में और एसक्यूएल के बारे में, हम लोग नया है तो इसलिए थोड़ा सा नहीं कोई बात नहीं है सर, आपके लिए बैठे हैं हम तो डेफिनेटली। अभी आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करो, फिर कर लेंगे 1-2 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा सर एक क्वेश्चन मेरा है जी। जैसे मेन सिस्टम जो है उसमें तो मैंने एसक्यूएल सर्वर डाल दिया विद डेटाबेस, ठीक है। जो मेरा क्लाइंट सिस्टम रहेगा उसमें तो डेटाबेस नहीं चाहिए, सिर्फ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डालना पड़ेगा क्या, या फिर डेटाबेस भी रहेगा, दोनों रहेगा? उसमें आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करके एक बार लिंक करना पड़ेगा मेन डेटाबेस के साथ आपको। वो हमने इसमें अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे ना, इस सेशन में रिकॉर्डिंग में पूरा हमारा दिया हुआ है, उसमें देखेंगे कैसी लाइन। स्टार्टिंग से ही थे, लेकिन एक क्वेश्चन था मेरा ये कि एक मैनेजमेंट स्टूडियो तो अलग सॉफ्टवेयर है जो कनेक्टिविटी के लिए आईपी से कनेक्ट करे या फिर सर्वर नेम से, जो डेटाबेस है वो सेम मेन पीसी में ही रहेगा ना, वो क्लाइंट पीसी में तो नहीं रहेगा? जी करो जंप डेफिनेटली, बट उसको कनेक्शन के लिए हमें वहां पे इंस्टॉलेशन करना पड़ता है स्टूडियो। हाँ वही चीज, ठीक है, थैंक यू। जी 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 जी। सर एक डिलीट करके बता दीजिए ना मेरे को डेटाबेस में से एसक्यूएल से। अभी मोहित सर, मैं इन द प्रोसेस ऑफ डिलीशन इन एसक्यूएल, इन कन्वर्सेशन ऑफ इन बिटवीन डेवलपमेंट, जब हम डेवलपमेंट कर रहे थे एसक्यूएल की, देखो अगर वो डेवलपमेंट तो हो जाएगी, इसमें अपडेट हो जाएगा, बट हमने डिलीट वाला वो फंक्शन इसलिए नहीं लगाया कि उसके बाद फिर वो रिकवरी नहीं होती। तो इसको अगर आपको करना है ना, तो आप कंपनी 12 ओपन करके यहाँ पे सिंपली उसको डेटाबेस से उठा दें। आप देख लीजिए जुगाड़। क्या क्लाइंट मल्टीपल कंपनीज बन गई है और बेचारा याद रख के वो करता है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपको लगता है ना, तो यहाँ पे आपने जुगाड़ करना है। बस कंपनी 12 आपने ओपन करनी है और कंपनी मास्टर में इन कंपनी टेबल here we remove old row, we will delete. Okay sir, समझ गए। Okay, this is जुगाड़। Hello. जी 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 बोलिए बोलिए। Sir, Nataraj here. I just want to know the same facilities available on cloud also. We can have SQL on cloud. Yes, definitely we will install SQL on cloud, no problem. No problem. सर इसमें जैसे कि एक क्लाइंट पीसी पे और एक जो डेटा है वो मेन सर्वर पे है, तो क्या हम उस डेटा को, सेम डेटा को क्लाइंट पीसी पे भी रख सकते हैं कि किसी वजह से अगर मेन सर्वर बंद है तो भी हमारा काम बंद ना हो? नहीं सर, वो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो फिर सर्वर और क्लाइंट का क्या वो है? मतलब मेन उसमें जैसे अभी गूगल ड्राइव पे बात हो रही थी ना, कि गूगल ड्राइव को हम उसमें रख सकते हैं इंस्टॉल करके, और जब भी नेट होगा तो वो उसमें हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो क्या कुछ इसमें भी सर्वर में भी सेम ऐसा है या कुछ अलग से? एक मैं एडवांस आपको टेक्निकल पॉइंट बता देता हूँ। YouTube पे आप सर्च करेंगे, आपका कोई ऑनलाइन डेटाबेस है, एसक्यूएल में एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप इस डाटे को सिंक कर सकते हैं उस सर्वर पे डायरेक्ट। वो थोड़ा सा टेक्निकल है। बहुत सारे लोग, जैसे बड़े बड़े आप मॉल देखते हैं,
तो वो एक उनका हेड ऑफिस में सर्वर होता है, इधर लोकल होता है, वो एसक्यूएल से डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर में ट्रांसफर हो जाता है। मे बी गौरव सर आपने किया होगा इसको। हाँ सर, एज़्योर से होता है सर। हैं जी, एज़्योर के थ्रू हो जाता है सर। माइक्रोसॉफ्ट मेरे सर्वर हिसाब एज़्योर से गौरव सर थोड़ा सा क्लियर कर दो इनको, थोड़ा सा वो हो जाता है सर, हो जाता है वो। आपको एक्चुअली उसकी प्राइसिंग बहुत हाई होती है। आप एज़्योर सर्वर लेंगे तो उस पे आप कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जैसे डी मार्ट है, वो क्या करती है, सेंट्रलाइज्ड सर्वर लेती है एसक्यूएल का, तो वो क्या करती है, इस लोकल सर्वर से सिंक कराती है डाटा उस मेन सर्वर को, तो वहां पे अपने पीसी के थ्रू वो ट्रांजैक्शन वाइज वो ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें काफी चीजें आती है एडवांस में, उस लेवल का हमारा क्लाइंट ही नहीं है। कुछ एसक्यूएल ट्रांजैक्शन सर्वर भी आता है, पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल के ऊपर वो ट्रांजैक्शन अपडेट करता है। बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में, बट उस तरीके का नॉर्मल हमारा जो क्लाइंट है वो नॉर्मल ही है। सॉरी, उसके पास 3 4 5 पीसी हैं, उन्हीं पे उनको इम्प्लीमेंट करना है सॉफ्टवेयर को, ज्यादा उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी कैन, दिस इज सफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर एवरी क्लाइंट। अभी सर जो दिखा है एसक्यूएल का, वो सर अभी यूट्यूब में अवेलेबल है सर? यूट्यूब पे जी यस सर, अवेलेबल है। यूट्यूब पे एवरीथिंग अवेलेबल है। जो सॉल्वर के पास नहीं है ना, वो भी है वहां पे, आप कुछ भी सर्च करो। नहीं हेलो, वो भी सर जो एसक्यूएल आप दिखे है, इसका वीडियो बना हुआ है सर जी। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग की होगी, सेशन किया होगा। गौरव सर किया आपने? हाँ सर, हो रही, चल रही। गौरव सर ने किया है, मनोज सर किया है आपने? जी सर, चल रही है। विकास जी किया है आपने? कर रखा है सर, हो रही है रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रिकॉर्डिंग है। पहले से भी यूट्यूब पे अपने वीडियो है। मैं आपको एक टेक्निकल बता देता हूँ, यहाँ पे आप हर सेशन को रिकॉर्ड करें। एवरी सेशन यू विल रिकॉर्ड, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग करने के बाद यू विल अपलोड ऑन योर चैनल। आप अपने चैनल पे उसको अपलोड करें। एंड here today we will discuss everything regarding the SQL server। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, जो हमारा टॉपिक था, वो क्या था? वो था हमारा SQL सर्वर पे। तो आज के देखो यहाँ पे ना, एवरीथिंग इज डेटा साइंस, हाउ वी विल बेटर यूज द सोशल मीडिया। मैं अपनी फेसबुक को कैसे बेटर यूज कर सकता हूँ, कैसे अपने लेक्चर्स को प्रमोट कर सकता हूँ। तो इसको आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने SQL, तो यहाँ पे SQL ट्यूटोरियल्स है। जस्ट क्लिक ऑन SQL ट्यूटोरियल्स, क्लिक ऑन ग्रुप, आपने ग्रुप पे क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स है। Just join the group and post which is your recorded session। जो आपने सेशन रिकॉर्ड किया है उसको आप इन ग्रुप्स में शेयर करें। शेयर इन these groups, and after sharing in these groups you will use a response from market, number of person automatically subscribe your channel। सॉल्वर आपको बहुत सारी ऑप्शन दे रही है, how can grow your channel, you are tech person, and how you can promote your channel। just simple steps, every meeting after recording upload on same topic live। if we record the session regarding garment, so here we after recording the session upload on the YouTube। आप रिकॉर्ड करने के बाद YouTube पे लोड करने के बाद उसको यहाँ पे गारमेंट सर्च करें, तो जैसे ही आपने गारमेंट का सेशन हुआ है तो उसको गारमेंट वाले ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास कि यार ये क्या वीडियो है, उसके ऊपर कंटेंट दे दो, लर्न फ्री, दिस। तो एवरी टाइम फोकस data science, this is totally data science। different topic, different type of category,
डिफरेंट तरीके के लोग हैं जो उस तरीके का